اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 اور 123 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب کہ تم کمزور تھے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ ناظرین، گزشتہ نشست سے آیت نمبر 121 سے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہاں سے لے کر جنگ احد کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات میں نے گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں رکھی، اور آج کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ جنگ احد کا ہی ذکر کرتا ہے، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے واقعات بھی بتاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کی کامیابی اور ناکامی دونوں کے متعلق آگاہ کر سکے۔ ناظرین، مدینہ کے دو قبیلے بنو سلمہ اور حارثہ تھے۔ ایک اوس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا خزرج سے۔ عبداللہ بن ابی ان قبیلوں پر بھی اثر انداز ہوا اور انہیں جنگ سے روکنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا۔ قریب تھا کہ یہ دونوں قبیلے عبداللہ بن ابی کے کہنے پر مسلمانوں سے الگ ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کی دستگیری فرمائی اور ثابت قدم ہو گئے۔ واللہ ولیہما، اللہ ہی ان کا کارساز ہے، اس نے عین موقع پر ان کی مدد فرمائی اور وہ غلطی کرنے سے بچ گئے، ورنہ منافقین کی صف میں شامل ہو جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی، یعنی ہمارے دو گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان گروہوں کا ولی اور مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں، فتح و شکست اسی مالک الملک کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محققین صوفیہ نے توکل کی تعریف کچھ یوں کی ہے، اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین محکم کہ اس کا حکم اٹل ہے،
इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पर अमल के असबाब के मुहैया करने में भी पूरी जिद्दोजहद करने को तवक्कल कहते हैं। हजरत सहल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स तर्क के असबाब को तवक्कल कहता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर एतराज करता है। नाज़रीन, जंग शुरू हुई, पहले हल्ला में ही कुफ्फार के कदम उखड़ गए और उन्होंने मुसलमानों के हमला की ताब न लाकर पिस्पा होना शुरू कर दिया। घाटी पर मुतय्यन दस्ता ने जब देखा कि अब कुफ्फार को शिकस्त हो चुकी है तो माल गनीमत हासिल करने के लिए वहां से दौड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत समझाया, लेकिन जब चंद आदमियों के सिवा किसी ने उनकी बात पर कान नहीं धरे। खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुशरिकीन के रिसाला के कमांडर थे, उन्होंने जब इस घाटी को खाली देखा तो पहाड़ का चक्कर काटकर मुसलमानों पर अकब से हमला कर दिया। अब क्या था, लश्कर इस्लाम में इंतशार पड़ गया, नज़्म ज़ब्त कायम न रहा। अब्दुल्ला बिन कुम्मा और अतबा ने अपने चंद साथियों के साथ हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दंदान मुबारक शहीद हो गए, जबीन अक़दस और रूए अनवर जख्मी हो गया और ये अफवाह भी उड़ गई कि हुजूर शहीद हो गए, जिसने सहाबा के रहे से होश उड़ा दिए। लेकिन जानसार गुलामों का एक ग्रोह उस वक्त भी परवानावार निसार हो रहा था। हजरत मुसअब रजी अल्लाह ताला अन्हु अलमबरदार थे। उन्होंने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहादत पाई। उनके बाद परचम हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ले लिया। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को हुजूर पर ढाल बना रखा था, हर तीर अपनी पुश्त पर रोकते। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार का हर वार अपने बाजू पर रोकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, मालिक बिन सनान रजी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत से दूसरे सहाबा इकराम ने दुश्मन के ज़बरदस्त रेले को पीछे हटाया। जब इधर उधर मैदान जंग में कुफार से मसरूफ़ पैकार मुसलमानों को हुजूर की सलामती की इत्तला हुई तो सब दौड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए और कुफार अपने ऊँटों पर सवार होकर मक्का की तरफ भाग गए। ये दुरुस्त है कि इसे कुफार मक्का की फतह नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि मुसलमानों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा और 70 से जायद जलीलुल कदर सहाबा शहीद हुए, जिनमें हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जिनको हबशी ने पीछे से नेज़ा मारा था। मुसलमानों को जो ज़िक उठानी पड़ी, इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने अपने रसूल और कायद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अताअत में तसाहल किया था, यानी सुस्ती की थी। अगर वो दस्ता घाटी पर ही जमा रहता तो ये अलमनाक हालात रूनुमा न होते। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। और इससे पहले अल्लाह ताला ने जंगे बदर में उस वक्त तुम्हारी मदद की जबकि तुम कमज़ोर थे, लिहाजा उससे डरते रहो ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बन जाओ। जंगे उहद के उस अलमनाक हादसा के बाद मुसलमानों में कदरे बददिली फैल गई।
चुनाचे उस मौका पर लश्कर इस्लाम को हौसला अफजाई और तस्कीन के लिए फतह मुबीन यानी जंग बदर का जिक्र फरमाया गया और इन्हें याद दिलाया कि किस तरह तुम्हारी कलील और बेसरो सामान सी जमीयत को दुश्मन के मुसल्ले लश्कर जर्रार पर फतह हासिल हुई। इसलिए उहद के नुकसानात से गमगीन न हो, अल्लाह ताला की इमदाद तुम्हारे साथ है। हाँ, जो गलती तुमसे हुई और जिसकी वजह से यह जिक्र उठाना पड़ी उससे इज्तनाब करना। नादरीन, बदर एक मकाम का नाम है जो कि मक्का और मदीना के दरमियान मदीना से लगभग 80 मील के फासले पर वाक़या है। ज़माना जाहलियत में बदर बिन कैस नामी एक शख्स ने इस मुकाम पर कुआं खोदा था, जिसके नाम पर इस कुएं का नाम बदर मशहूर हो गया और इसी निस्बत से इस मुकाम का नाम भी बदर ही पड़ गया। 4-5 मील का ये एक मैदानी इलाका है जिसके इर्द गिर्द पहाड़ियां हैं। ताहम ये इलाका साहिल समंदर से करीब ही है। इस मकाम पर बरोज़ जुमा 17 रमज़ान मुबारक को अहले हक और अहले बातिल के दरमियान एक अजीम वाक़या पेश आया। ये मुसलमानों के लिए हिजरत के बाद सबसे अहम लड़ाई थी। इससे पहले छोटी छोटी 2-3 झड़पें हो चुकी थीं, ताहम ये सबसे बड़ा मार्का था। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफाल में जंग बदर के दिन को यौमुल फुरकान से ताबीर फरमाया है। इसका तफसीली जिक्र इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आयत आने पर होगा। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन की दिलजोई के लिए फरमाया, मैंने बदर में भी तुम्हारी मदद फरमाई थी, जबकि वअन तुम अज़िल्ला, तुम नहायत ही कमज़ोर थे। नाज़रीन, अज़िल्ला ज़लील की जमा है और ये लफ्ज़ अरबी ज़बान में कई मानों में इस्तेमाल होता है। इसका एक मानी कमज़ोर है, कमज़ोर और बेसरो सामान होता है और इसी मौका पर यही मानी ज़्यादा मुनासबत रखता है। इसके एक मानी नरम मिजाज आदमी के भी लिए जाते हैं, जैसा कि पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 54 में इरशाद बारी ताला है, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। अहले ईमान मोमिनों के लिए नरम मिजाज और काफिरों के लिए सख्त होते हैं। गोया मोमिन आपस में रुहमा बैनहुम का नक्शा होते हैं, यानी वो एक दूसरे के लिए नरम मिजाज होते हैं। जलील का एक तीसरा मानी हकीर और रुसवा भी होता है, जैसा कि पारा नंबर 3 सूरत आल इमरान आयत नंबर 26 में इरशाद है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। ए अल्लाह, तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है ज़लील रुसवा कर देता है। बहरहाल इस मुकाम पर अज़िल्लतुन का मानी कमज़ोर और बेसरो सामान ही बेहतर है। नाज़रीन, मुसलमानों की तादाद 313 थी, जबकि कुफार का लश्कर 1000 के करीब था। जब लश्कर आमने सामने हुए तो अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब नुसरत के लिए हाथ फैलाए और अर्ज की कि ए अल्लाह, अपना वादा पूरा फरमा। अगर मुसलमानों का ये मुख्तसर ग्रोह हलाक हो गया तो रूए ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं की जाएगी। महवियत का यह आलम था कि दोष मुबारक से चादर गिर पड़ी। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीछे से अपने आका को गले लगा लिया और अर्ज की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला अपना वादा पूरा फरमाएगा। अदब न्याज में डूबी हुई दुआ कबूल हुई और दुनिया ने देखा कि चंद सरबकफ मुजाहिदों ने बदर के मैदान में कुफ्र को ऐसी शिकस्त दी जिसके बाद वो संभल न सका। और ये सरबकफ मुजाहिद अल्लाह ताला के फरिश्ते थे, मलाइका थे। इनका जिक्र
آئندہ آیت میں آئے گا، آئندہ نشست میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔